Hello. I hope you are not tired to look at my face all the time I'm on stage and nearby roaming around. बोर तो नहीं हो गए आप मेरी शक्ल बार बार देखकर? जय भीम सभी को। जय भीम। जय भीम। पीछे से आवाज आनी चाहिए। जय भीम। थैंक यू वेरी मच। यही तो एनर्जी चाहिए हमें। तो ये आखिरी सेशन है और काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। शायद मुझे लगता है कि भिक्खुनी संघ में ये चर्चा हुई थी पहले, ऐसा मुझे खबर है। तो हमारा आज का जो विषय है कि हमें संविधान में इंटरसेक्शनलिटी, जैसे हम कहते हैं कि संविधान सबको एक बराबर समझता है। हमारी लड़ाई चल रही है भिक्खुनी संघ के एग्जिस्टेंस को, उसके अस्तित्व को लेकर। लेकिन स्त्री पुरुष के अलावा भी और कई सारे लिंग, जेंडर्स है और आइडेंटिटीज़ है। तो हम चाहते हैं कि संघ हमारा और व्यापक हो और इसके ऊपर ये चर्चा की जाए। तो आज का विषय है इंटरसेक्शनलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड बुद्धिज्म, नेविगेटिंग क्वियर आइडेंटिटीज along with caste, class and gender. And I would like you to please once again appreciate for all the panelists we have here. Please clap your hands. We have Prashant Bhavre with us. Prashant Bhavre law पढ़ रहे हैं, LLM student है at National Law School, University of India, Bangalore, and they are queer person with disabilities. We have Vihan with us. Vihan is an Ambedkarite, queer, feminist, trans man. He is working in the development sector on the intersection of gender, caste and climate justice. भाई तालियां प्लीज बजती रहे। उसके बाद हमारे साथ है ताशी. Tashi is a trans feminine person who has been working in human rights and social justice movement spaces for 15 plus years and as a Buddhist monastic in Tibetan tradition for over 7 years. 7 सालों से ये Tibetan चीवर में tradition से चीवर में है। साथ ही they are working within as a founder member of queer स्वाभिमान यात्रा and तेलंगाना हिजरा intersex transgender समिति। इसी के साथ they are also a member of Telangana State Government Welfare Board for Transgender Persons and working with Queer Trans Wellness and Support Center, rooted in the firm belief that no spiritual practice can be apolitical. अराजनीतिक कुछ नहीं होता, ऐसा उनका मानना है। And she also says further that she is actively seek ways to integrate Buddhist philosophy and its contemplative practices with socio-political activism. तो इस तरह से काफ़ी डाइवर्स और बहुत इंटरेस्टिंग पैनल हमारे साथ है और हम विषय की शुरुआत इस तरह से करेंगे। मैं सबसे पहले विहान मेरे बाजू में है तो विहान से शुरू करना चाहूँगी। विहान, आप अम्बेडकराइट स्पेस में हैं, एक अम्बेडकराइट बहुजन पॉलिटिक्स को लेकर आते हैं। तो आप इस स्पेस को नेविगेट करते समय क्या अनुभव है आपके? कैसे लगता है आपको कि ये स्पेस मेरा है और सामने वाले भी कितना एक्सेप्टेंस देते हैं? तो हम आपके अनुभव जानने से शुरुआत करना चाहेंगे। हाँ, so first of all, thank you Mayura for inviting me and actually thinking about me to be part of this space. I want to start from that I identify myself as Ambedkarite and look through all my journey or my work through Ambedkarite perspective. So whatever I am going to share, that will be with my personal identity as a person coming from Bahujan community, seeing caste-based oppression, discrimination while growing up in village, and then trying to understand that कि this is injustice, जाति के आधार पर किसी के ऊपर हिंसा या भेदभाव होना गलत है, and then building consciousness around that, how one can think that this structure is oppressive structure and you can also contribute to get out of this thing, and there are ways which has been practiced by generation previous to us. That might be Dr. Babasaheb Ambedkar, Savitribai Phule, and other
people who are part of anti-caste movement space. But while building that consciousness, I think that one important thing in my life was education. And Ambedkar idea and thought about educate, agitate, organize has really helped me. Education had helped me to give a critical thinking, to understand that this is the structure which is oppressive, this is not a right way, this discrimination need to be go. At the same point of time, when I was able to identify that this is the oppression on caste, I am also being part of a society where I am a person assigned female at birth. So society had always seen me as a woman or a girl child while growing up. There was discrimination on the basis of gender, on the basis of looking at me that I am a girl. So there was always been given preferences to my brother or the society which we traditionally seen as a patriarchal society. So my consciousness around my gender identity that might not be as a trans man, but as there is a discrimination on the basis of gender, has also been able to evolve during that time. I also want to touch upon that when I started understanding Ambedkar and Ambedkar philosophy and Ambedkarite thought, there was also some things which was deeply inspired me was a concept of Maitri or friendship which Ambedkar had borrowed from Buddhism. And I want to share that because when first time I stepped out of my village and went to a college which for my education, which I am able to go only through scholarship, because the person coming from certain caste able to get some scholarship, and because of that scholarship I able to go and be in a space. I went to Pune, which was very Brahminical space. We know that caste discrimination as a young student was too much on my face, and to navigate that system and to navigate day-to-day struggle of that caste and your language, because you come from rural area, you come from certain caste, your surname has always been highlighted. The way you speak is not a Brahminical Marathi you speak a dialect which is very rural. So I think I found a friendship and space in Ambedkarite movement space where Dalit Bahujan Adivasi students were there to support each other, and that idea of Maitri I found there. I also found an idea of Maitri in queer spaces where when I was articulating about my gender identity and saying that I am a trans person or I am a trans man, I found people who actually accepted me, given their friendship or given spaces to me that we are here for you. At the same point of time, as a person who is a trans person, we know that we also face violence and discrimination in family. So I don't have my biological family or natal family who had accepted my gender identity till now. So in short, I don't have any relationship with my biological or natal family because they don't able to accept my identity as a trans person or who I am. While saying that, I come from Bahujan community, so I also know that navigating the spaces is also difficult within the Bahujan community. It was difficult with my family. Similarly, some people who provided me that friendship and maitri when I was navigating the Brahminical education institutional space, some of them also had discriminated, not accepted my identity, or decided to not continue their friendship in some ways or another ways because they don't really understood that who I am, what is my identity, and I faced that discrimination. I had lost some of the friends which are from Ambedkarite movement space. So when I'm talking about all these things, I also want to say that it is also important for me to look at Baba Sahib thought where Baba Sahib said that fraternity is important and he borrowed the fraternity from Buddhist values. So I tried to be more conscious and aware and try to follow the Ambedkarite path. That was one of the things which I was looking for. Going ahead, when I was also getting inspired by Ambedkarite ideology, one of the things which Ambedkar said that I born Hindu, unfortunately I born untouchable and in Hindu religion, but I will not die in that
religion. So for me, who seen that caste system every day on the face, and now trying to identify that I don't want to be part of that structure and system, and I really want to disassociate myself with that religion. But at the same point of time, when I was also trying to find my faith or my answers, I was also like somehow feel conflicted, not able to find my way where I can be associated with. It doesn't mean that I have all my answers or I had took all the efforts to find my answers, but one of the important thing was for me that where Ambedkar's, because I am Ambedkarite, I will again go back to Ambedkar's thoughts on. He said that people who are from depressed class or communities and who are poor people can't be atheist or can't be without religion. Like we need hope in our life, and for all of us the hope comes from some religious ideology. And so I was finding that what is that religious ideology through which this hope will come, and Ambedkar's first thing was Buddhism. So I was also trying to find my faith in Buddhism, which unfortunately I haven't really managed to find yet. But I also tried to find it. And at the same point of time when I was finding my hope, I thought that I had also able to see some sort of discrimination in the spaces of Ambedkarite spaces, I will say. I will not say Buddhist spaces. But at the same point of time when I was figuring out, okay, if I want to convert myself to some religion, and if that might be a Buddhism, I able to identify that there are different sanghas which are for different for women, different for men. A person who was female assigned at birth might be seen as that which sangha I might choose. That can be a sangha which was for women sangha, but I don't associate myself with that. And a person who also was inspired that I know that there is, Buddha also talk about suffering, Ambedkar also talk about that how it is important for everyone to get out of exploitation and suffering. So for me to get out of exploitation and suffering, I was looking answers inside, and as a trans person I decided that I don't want to be in a suffering of gender dysphoria. That means that my body is different and my gender identity is different. I want to align that, and I know that there are different philosophies and different thoughts of suffering and how it can be interpreted differently. But for me, that everyday suffering was very much important, and to not be part of that everyday suffering of gender dysphoria, I decided to do some gender affirmative surgeries. That might be taking testosterone, which might change my voice, which had helped me to get body hairs. That might be doing surgery, which helped me to have less gender dysphoria. And but at the same point of time, I will not say that my everyday violence or discrimination or suffering had gone. It has been remained constant, because there is this discrimination, violence in society, and society is made of structures which has been operating in everyday life and in every aspect of things. I think that I'm translating a lot by going here and there, but one of the important thing which means from here I started about education. I think that Ambedkar said that our battle is not for wealth or power. Our battle is for our own freedom, and to achieve that freedom, we all need to give our best. We all need to work for that. And his last and final words for that was that for that you have to educate, agitate and organize. And I decided that if I have to be on his path, because I follow Ambedkar, I might be on his path where I can follow the Indian Constitution, where I can follow equality, liberty, justice and fraternity principles, which he had borrowed from some of them from Buddha, some of them he had widely spoke about. And I thought that that is important for me to go and follow that path,
while looking at people within the community also are discriminatory towards you because of your gender identity. Not only in person, sometime online, sometime your own family, sometime your own friends doesn't really understand about your identity. Then in those spaces, how you can look for peace or look for hope, which might help you to be alive in times which are very bad or very grey. This navigation is not very easy. It is difficult, and I think that it will be continue to be difficult. But still, Ambedkar's all idea and his support to the Karve case, where he stand for saying that the homosexuality is not unnatural. He used word person in constitution, which is like giving personhood to all the rights, or his thoughts about justice, standing against oppression has actually inspired him to follow his own path. And I also do believe that someday my journey of understanding Ambedkar will continue, and someday I might find some different hope and ways of thoughts. I hope I answered your question. It was, I just went on to listening and I couldn't frame what I'm supposed to ask. But yes, very importantly, and there's a very big diversity. सबकी जर्नी एक जैसे नहीं है. हम कहते हैं कि हम एक समुदाय से हैं, हमारे सबके साथ एक ऐसा इतिहास है जहाँ पर हमें दबाया गया है, एक दबे कुचले समाज से हम आते हैं, बट फिर भी हर इंडिविजुअल की जर्नी अलग रहती है. तो मैं इसी को लेकर प्रशांत के पास जाना चाहूँगी. And I would like to know from you your journey of navigating within the spaces, since Vihan told that he comes from a Bahujan family, but your family and your realities, your childhood might be different. So how did you navigate that space, and where did you find your Maitri? Yeah. इन्होंने जो बोला उसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, वो समझ में नहीं आया जल्दी से मैं समराइज करता हूँ. मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि मैं खुद को अम्बेडकराइट आइडेंटिफाई करता हूँ, और मैं अम्बेडकराइट विचारधारा से प्रेरित होके जो अम्बेडकर ने दिए हुए विचार है उसमें बिलीव रखता, वो उनको मानता हूँ. मैं इसके बारे में बात कर रहा था कि मैं अम्बेडकर ने बुद्धा से जो मैत्री का थॉट फॉलो किया था उसके ऊपर मैं बहुत भरोसा रखता हूँ, और वो ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत प्रेरित करती है, क्योंकि मुझे मैत्री मेरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में दलित आदिवासी बहुजन कम्युनिटी के साथ मिली, क्योंकि मैं उस समुदाय से आता हूँ. मुझे क्वियर लोग जो है LGBT समुदाय से जो लोग हैं उनमें मिली जब मैंने मेरे जेंडर आइडेंटिटी के बारे में बातचीत किया और मेरी जेंडर आइडेंटिटी के बारे में शेयर किया. बट एट द सेम उसके साथ साथ मुझे वो मैत्री कई जगह पे टूटती हुई भी नज़र आई, क्योंकि जब मैंने अम्बेडकराइट स्पेस में बताया कि मैं खुद ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूँ, तो तब कुछ लोगों ने मेरी मैत्री अपनी मैत्री मेरे से तोड़ दी. तो उसी प्रकार से जब क्वियर कम्युनिटी में भी जब भी कभी किसी को दलित होने का या बहुजन होने का या आदिवासी होने का मीन्स सवर्णा लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो उधर भी मेरी मैत्री कभी कभी उस विचारों के कारण, उस आइडेंटिटी के कारण टूट गई. पर मैं वो मैत्री को बहुत महत्वपूर्ण लगता हूँ, और मैं बहुत उसको अच्छे से देख के समझता हूँ, क्योंकि मेरी जो फैमिली है, जो मैं बहुजन कम्युनिटी से आता हूँ, उन्होंने मेरे ट्रांसजेंडर होने के कारण मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है. मेरे घर वालों ने मेरे साथ रिश्ते तोड़ दिए क्योंकि मैं एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूँ. तो मैं वो भी समझता हूँ कि कैसे ये रिश्ते बदलते रहते हैं और टूटते रहते हैं. तो सिमिलरली मुझे मैत्री के दौरान एक नया घर, नया परिवार जो हम चूजन फैमिली बोलते हैं वो भी मिला है. उसके साथ साथ मैं बात कर रहा था कि मैं अम्बेडकर के पाथ पे चलता हूँ, तो मैं अम्बेडकर ने बोला हुआ एजुकेट, एजुकेट और ऑर्गेनाइज, इन तीनों चीज़ों को बहुत समझता हूँ. शिका, संगठित हुआ, संघर्ष करा, ये तीन, शिका, संघर्ष करा, संगठित हुआ,
ये तीनों चीज़ों को बहुत समझता हूँ और मानता हूँ, क्योंकि अम्बेडकर ने बोला था कि आपकी लड़ाई कोई संपत्ति के लिए या कोई शक्ति के लिए नहीं है, आपकी जो लड़ाई है वो फ्रीडम के लिए है, यानी आज़ादी के लिए है, और उसके लिए सबको अपना अपना कर्तव्य पूरा करना होगा और सबको अपने अपनी तरफ से काम करना होगा। तो मैं उस चीज़ को मानते हुए, उस चीज़ को समझते हुए काम करता हूँ, और वो काम करते हुए मुझे कभी कभी हमारे समुदाय के व्यक्ति भी मेरी ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी ना स्वीकारते हुए मुझे वो संघर्ष हमारे समुदाय के लोगों के साथ भी करना पड़ता है, और हमारे समुदाय के बाहर के लोगों के साथ भी करना पड़ता है। आई थिंक एक पॉइंट जो उन्होंने कहा था कि बचपन में फीमेल असाइंड एट बर्थ, मतलब जब वो पैदा हुए तो उन्हें एक स्त्री लैंगिक ये इस आइडेंटिटी के साथ जीना पड़ा, और लेकिन वो उससे मैच नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि वो अपनी बॉडी के तरफ देखने का जो एक दृष्टिकोण होता है कि जब मैं खुद को पुरुष समझता हूँ तो मैं एक स्त्री आइडेंटिटी के साथ कैसे जीऊँ। तो एक जाति का संघर्ष, एक लिंग का संघर्ष, और उसमें भी लिंग मैच ना होने का एक संघर्ष। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं जो खुद को सोचता हूँ मैं वो बनूंगा। उसके लिए उन्होंने कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स भी लिए, जिस वजह से उनकी आवाज़ बदली, उन्हें दाढ़ी मूंछ आने लगी, और फिर उसके बाद आइडेंटिटी बनने के बाद क्या सारा संघर्ष खत्म हो गया? तो ऐसा नहीं है, वो कहते हैं। ये बस एक पॉइंट छूट गया था। सो ओवर टू प्रशांत। Do I need to repeat the question? No. Thank you, Viva. Thank you, Vihan. आपका सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी हद तक मैं समझ सकता था, मैं रिलेट कर पा रहा था। जी, मैं यहाँ पे लॉ का स्टूडेंट भी हूँ, मैं कानून सीख रहा हूँ, और महाराष्ट्र से बाहर हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा अलग लगता है जब मैं पहली बार आया। बट यहाँ पे भी लोग मिले मुझे, अम्बेडकर रीडिंग सर्कल एक हमारा ग्रुप है, और काफ़ी लोग फिर मिलते गए। तो जो बुद्धिज़्म, बाबा साहब के विचारों को साथ लेके चलते हैं, तो उनसे जुड़ना सहज था और उनसे जुड़ना स्वाभाविक था। मयूरा ने पूछा मुझे कि मेरा जर्नी कैसे रहा, मुझे बचपन में या फिर मुझे मेरे लाइफ में मेरा क्या अनुभव रहा, उस हिसाब से। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे जो लोग हैं वो हम लोगों को ऐसे नेचुरली जीने का कभी एकदम से चांस नहीं मिला। हमारे पूर्वज, मेरी माँ, मेरे फादर तो गुजर गए, मेरी माँ और एल्डर्स बताते हैं कि उन्होंने खुद की उनकी लाइफ में छुआछूत का सामना किया है। मेरी माँ बताती है कि गांव में एक कुआं था जहाँ से पूरा गांव पानी पीता था, और एक कुआं था जहाँ से मेरे घर वाले या फिर मेरे घर जो आसपास के जो दलित फैमिलीज़ है, हमको पानी कहीं और से लेके जाना पड़ता। नदी में सब लोग कपड़े धोते थे, तो जो सवर्ण, जो ऊंची जाति वाले हैं, जो वो नदी के ऊपर वाले कोने में कपड़े धोएंगे, और जो बाकी समाज के लोग हैं, मेरे घर वाले, जो मेरी माँ है, जो जब वो छोटी थी तो उसको नदी के नीचे के भाग में कपड़े धोने पड़ते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोगों को कभी ऐसा पूरा स्वातंत्र्य मिला नहीं। तो जो भी फिर आज़ादी के बाद जो भी थोड़ा बहुत हमको समान अधिकार मिले हैं बाबा साहब की वजह से, या फिर जो भी हमको अधिकार मिले हैं, एक नागरिकता मिली है, स्वाभिमान मिला है बाबा साहब की वजह से, बुद्धिज़्म मिला है, तो वो सब मिलने के कारण हम लोगों को थोड़ा बहुत तो ये आ गया है। बट फिर भी जब हम ये ब्राह्मणिकल व्यवस्था में जी रहे थे, तो ये ब्राह्मणिकल व्यवस्था का काफ़ी बड़ा प्रभाव हमारे समाज में, हमारे संस्कृति में अभी भी है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो है कि मर्द पहले खाना खाएगा, औरत बाद में खाना खाएगी, या फिर मर्द को पहले प्रावधान मिलेगा, बीवी बाकी सारे काम करेगी, या फिर ये जो ऊंच नीचता का है, ये जो भी पावर रिलेशन है, जो भी सत्ता का रिलेशन है, सबसे बड़ा डिसीजन कौन लेगा, सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया जाएगा,
चाय घर में कौन जल्दी बनाएगा, कब बाकी छोटे मोटे काम कौन करेगा, बड़े काम कौन करेगा। ये जो सत्ता का जो विभाजन है, ये मुझे नहीं लगता कि बुद्धिज़्म की देन है, ये ब्राह्मणिज्म की देन है। ब्राह्मणिज्म सिखाता है कि शिक्षक कोई और जाति का होगा, झाड़ू करने वाला कोई और जाति का होगा। तो ये जो सत्ता का जो डिस्टिंक्शन है, सत्ता का जो एकदम विभाजन है कि ऐसा ये करेगा और ऐसा ये नहीं करेगा और ये ऐसा करेगा, ये बुद्धिज़्म की देन नहीं है, ये बुद्धिज़्म की फिलॉसफी में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये ब्राह्मणिकल फिलॉसफी है। लेकिन बिकॉज हमको इस तरह से दबाया गया इतने सालों तक, इतने क्या बोलते हैं उसको, मिलेनिया तक हमको जिस तरह से दबाया गया, उसका हमारे ऊपर काफ़ी प्रभाव है। तो हमारे घरों में भी अभी जो है, जो भी ऑपरेसिव स्ट्रक्चर है, वो इसकी देन है, मुझे ऐसा लगता है। ये पहले मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ, उसके बाद मैं बोलूँगा कि हाँ, मेरा विहान ने बताया कि उनका जेंडर आइडेंटिटी के साथ कैसा मुश्किलात थे और कैसे दोस्त के साथ ये। मेरा ये था कि मैं चलता थोड़ा अलग हूँ, मैं थोड़ा डिसेबल पर्सन हूँ मैं। तो स्कूल में मुझे उसके लिए काफ़ी बुली किया गया और उसकी वजह से काफ़ी ना मैं खेल पाया, ना मैं किसी टीम का हिस्सा बन पाया, या फिर ना उस तरह के कई जो स्पोर्ट वाइज एक्टिव जो बच्चे होते उनका कभी हिस्सा नहीं बन पाया। तो उस हिसाब से ये जो है कि जेंडर की वजह से, हाव भाव की वजह से, किसी के शरीर के छोटे होने की वजह से, लंबे होने की वजह से, मोटे होने की वजह से, ये जिस प्रकार का दुर्व्यवहार समाज में किया जाता है, उसके रूट्स ब्राह्मणिज्म में है, हमारे बुद्धिज़्म में नहीं है। तो हम लोगों को ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि हम इसको निकालें। जब तक हम ये नहीं निकालेंगे बुद्धिज़्म में, हम फिर कैसे मानेंगे बुद्धिज़्म को, हम कैसे पूरी तरीके से अपनाएंगे। तो वो पूरी तरीके से अपनाने के लिए ये जो छोटे छोटे हमको हमारे पूर्वाग्रह बन चुके हैं, या फिर ये जो ब्राह्मणिज्म ने हमको जो ठूस के भरवाया है कि पुरुष प्रधान संस्कृति, और महिला को तो हमेशा पति के सहारे जीना पड़ेगा, या फिर महिला कहीं अकेली नहीं जा सकती, उसको उसके या तो बेटे के साथ जाओ, भाई के साथ जाओ, या फिर पति के साथ जाओ, महिला को कोई अधिकार नहीं। ये शिकवत नहीं है हमारी, ये शिक्षा नहीं है हम, ये ब्राह्मणिज्म की है। बुद्धिज़्म पूरा उल्टा बताता है, बुद्धिज़्म हर किसी को ये देता है। और क्योंकि हमारे विषय में थोड़ा सा लंबा ले रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि हमारे विषय में कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि बाबा साहब संविधान निर्माता, क्रिटिकल रोल उन्होंने प्ले किया। बाबा साहब ने बहुत हद तक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी की जो जड़ें हैं संविधान में, संविधान के अंतर्गत उन्होंने इम्प्लीमेंट की, उन्होंने वो एंट्रेंस की। तो समता, स्वातंत्र्य, बौद्धता, उनके अर्ली राइटिंग्स में बोलते हैं कि ये ये फ्रांस की जो क्रांति हुई, वहाँ से ये मोरस दुनिया को मिले। बट जब वो बुद्धिज़्म को पढ़ते हैं, जब वो बुद्धिज़्म के साथ और एंगेज होते हैं, जैसे जैसे 1940s आता है, लेट 50s आता है, वो बोलते कि नहीं, ये समता, स्वातंत्र्य, बंधुता थी, तो पहले से ही बुद्धिज़्म में है, यहाँ की धरती में पहले ही समता, स्वातंत्र्य, बंधुता है। बुद्धा ने खुद ये बताया कि रिलीजन नहीं है इंसान के लिए, इंसान के लिए रिलीजन है। तो यहाँ पे इंसान महत्वपूर्ण है, और वो इंसान बोलता है, ना वो पुरुष बोलता है, ना वो बोलता है कि ऐसा लंबा चौड़ा पुरुष होना चाहिए, गोरा पुरुष होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, ना वो किसी की एज बताता है। वो बोलता है कि इंसान, एक इंसान, ये धम्मा में सबसे महत्वपूर्ण है इंसान। तो फिर अभी विधान ने भी बात की कि कैसे संविधान में पर्सन करके लिखा, व्यक्ति लिखा, पुरुष नहीं लिखा, महिला नहीं लिखा, व्यक्ति लिखा। तो एक जब व्यक्ति लिखा हुआ होता है, तो उसके आधार पर ये है कि धम्मा भी उसको वैसे देखे। धम्मा के लिए ये सब नहीं चल रहा, ये इंसान के लिए, इंसान के दुखों को परे करने के लिए धम्मा की बुद्धा ने यहाँ पे नींव डाली, और फिर जाके आगे फिर अशोका और बाबा साहब ने उसको आगे लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, समाज में अभी भी बहुत पूर्वाग्रह है, अभी भी बहुत भेदभाव होता है, और उसकी जड़ें मुझे ऐसा लगता है बहुत हद तक ब्राह्मणिज्म के इन्फ्लुएंस है। ब्राह्मणिज्म ने यहाँ पे पूरा, हमने देखा भी इससे पहले कि कैसे सांस्कृतिक टेरर मचाया है यहाँ पे, पूरा
आप देख सकते हो कि कैसे बुद्धिस्ट साइट को उखाड़ फेंका है। बुद्धा का यहाँ पे बुद्धा की ये धरती थी, इन्होंने क्या करके रखा है आप सब जानते हैं मुझसे अच्छा। तो ये बुद्धा के सत्संग, विवेक, बुद्धि वाले, रैशनैलिटी वाले और समता, स्वातंत्र, बंधुता वाले समाज पे ब्राह्मणिज्म का ये आतंकवाद है। और ये ब्राह्मणिज्म के आतंकवाद की वजह से हम अभी भी किसी व्यक्ति को उसके देखने के हिसाब से, उसके जेंडर के हिसाब से, उसके देखने चलने के हिसाब से हम उसके भेदभाव करते हैं। और मुझे लगता है कि वो हमको उसको परे करना पड़ेगा। और तभी हम शायद बहुत हद तक, जैसे काफ़ी अभी पहला जो सेशन था, ऑनरेबल काफ़ी भिक्खुनी हमारे बोली कि कैसे भिक्खु संघ भी भिक्खुनी संघ के साथ नहीं खड़ा रह पा रहा, भिक्खु संघ भी भिक्खुनी संघ के साथ भेदभाव करने में तुला है, भिक्खु संघ भी भिक्खुनी संघ के विकास में बाधा डाल रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? ये तो ब्राह्मणिज्म है। ये पुजारी करता है। ये पुजारी करता है कि तू दूर हट, मैं तेरे को दूर से प्रसाद फेंकूंगा। ये हमारा नहीं है, बुद्धिज्म का नहीं है। जब आप बुद्धिज्म बोलते हो तो ये भिक्खु, भिक्खुनी संघ और इतर और कोई जेंडर के लोग हो, वो तो उनका खुद का अपना है। बुद्धिज्म तो अपना है, इसमें कैसे कोई किसी को बाधा डाल सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको सबको समझना पड़ेगा और इस भेदभाव को साथ में मिलके धीरे धीरे और घरों में निकालना पड़ेगा। जैसे विहार ने बोला, मेरा भी वही है कि मैं भी सोचता हूँ कि घर में ये सब बोलूँगा तो फिर घर वाले समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। बट यही है कि जब धीरे धीरे एक दूसरे से बात करेंगे शायद चीज़ें सुलझ जाएगी। और बुद्धिज़्म के अगर प्रिंसिपल को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जैसे मैत्री, समता और स्वातंत्र्य की बात की, स्वातंत्र्य मतलब यही तो है कि जिसको जैसे रहना है वो वैसे रहे, जब तक वो किसी और को ना तकलीफ पहुँचाए। तो हम कौन होते हैं दूसरों को ऐसे मत रहो, वैसे मत रहो बोलने वाले? हमको ये है कि जैसा है, जो है, सन्मार्ग पे चलता रहे, बुद्धा के मार्ग पे चलता रहे, वो ज़रूरी मुझे ऐसा लगता है। शुक्रिया। We need English translation. Do we need English translation? No. Okay. Thank you so much, Prashant. It was very insightful. हम सिर्फ किताबों से ही ज्ञान आता है ऐसे नहीं है। हम जब एक दूसरे की जिंदगियाँ सुनते हैं उससे भी बहुत हमें सोच मिलती है, समझ मिलती है, बहुत ज्ञान मिलता है। And we were talking about what is the role assigned to a gender and how it is imbibed within ourselves कि it is also decided who will speak and who will listen. Also आपने तृतीय पंथी, थर्ड जेंडर ऐसा शब्द सुना होगा। तो who has decided which is the first gender, which is the second gender, which is the third gender? और जब पुरुष बोलता है तब सुनते हैं, स्त्री बोल रही है कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जब ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं कि शायद मैं स्त्री नहीं हूँ, दिख तो हमें स्त्री रहा है, या पुरुष दिख रहा है पुरुष नहीं हूँ, या फिर मैं इन दोनों से परे हूँ, तो उन्हें कौन सुनेगा? ये बहुत प्रश्न होता है बड़ा। But then when we see, look at our bhikkhunis, we cannot identify who is a bhikkhu, who is a bhikkhuni because of their attire. Nobody has hair. What is the identity of womanhood? लंबे बाल, जिसके नहीं है वो पूरी औरत नहीं है, और जिस लड़के ने बाल बढ़ा लिया वो काहे का मर्द। There are so many misconceptions that we are living with, right? But then when we look at our bhikkhunis or bhikkhus, we cannot differentiate or cannot guess their gender unless until to the so-called identified voice or whatever it is. So I would like to come to Bhante Tashi and ask you, how was your journey? And like I said कि चीवर से एक अलग पहचान मिलती है। So how was your journey of becoming a trans feminine? And then did you find a different power after wearing robes that people want to listen to you? So yeah, and we all want to listen to you. We are eagerly waiting for that. थैंक यू मयूरा। पहला पूरे संघ को बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाए, और खासकर जिस अवसर पे बुलाया है वो इंटरनेशनल भिक्खुनी डे, यानी कि
हम जिस तरह खासकर एक समुदाय का लिए एक दिन डेडिकेट करके कुछ मनाते हैं, इसका मतलब है कि उस समुदाय का महत्व समाज में बहुत कम समझा जाता है। और बौद्ध समाज में भी भिक्षुणियों के लिए एक अलग सा दिन डेडिकेट किया करना पड़ा है। इसका मतलब ये है कि भिक्षुणियों का कोई सुन नहीं रहा है और भिक्षुणियों का भिक्षु लोगों के साथ वो समान मर्यादा सम्मान वो नहीं है। वो हर एक ट्रेडिशन के बौद्ध धर्म का हिस्सा है। जिस तिब्बतन बौद्ध धर्म का प्रैक्टिस करती हूँ मैं, उसमें भी भिक्षुणियों का अलग हालात है। और संघा का विभाजन भी हमेशा मेल फीमेल में होता है। और कई बार ये आर्ग्यूमेंट आता है कि अगर संघ मेल और फीमेल है तो ट्रांस लोगों का कहाँ पे स्थान होगा। और ये सवाल मेरे सामने हमेशा रखते हैं। और वो बौद्ध समाज के बाहर भी और बौद्ध समाज के अंदर भी ये सवाल आता है कि आपका स्थान क्या है। और I think in Buddhism, especially Tibetan Buddhism or any Buddhism, I think बौद्ध धर्म में जब हम पहला Tibetan Buddhism में जो refuge prayer करते हैं, I go for refuge until I'm enlightened to Buddha Dhamma in the Supreme Assembly. By my practice of giving and other perfections, may I become a Buddha to benefit all other sentient beings. Right? So मतलब यानी कि आप एक ऐसा इच्छा उत्पन्न कर रहे कि आप खुद बुद्ध बने, आप अपने अंदर जो बुद्धत्व है उसको महसूस करें ताकि आप दूसरे प्राणियों का मदद कर सके। और आप जो फ्रेज इस्तेमाल करते हैं सेंटिएंट बीइंग्स, आप मनुष्य भी नहीं बोल रहे यहाँ पे, स्त्री भी नहीं बोल रहे, पुरुष भी नहीं बोल रहे, सेंटिएंट बीइंग्स बोल रहे। यानी कि हर कोई जीव जिसमें बुद्धत्व की वो पोटेंशियल है जो अपने बुद्धत्व को महसूस कर सकते हैं। यानी कि संघ इज नेवर जस्ट एक्चुअली सिर्फ मनुष्य, उसमें पुरुष और स्त्री का जवाब तो आती ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मनुष्यों के बारे में बात नहीं हो रहा है, ये सारे जीवों के बारे में बात हो रहा है। क्योंकि संसार में सारे जीव दुख महसूस करते हैं और भगवान बुद्ध सारे जीवों का दुख से कैसे मुक्ति पाना है वो मार्ग का उपदेश कर रहे हैं सारे प्राणियों के लिए, वो सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं है। तो वो समझ सब छोटा पड़ जाती है, वो सिर्फ मनुष्यों के बारे में हो जाती है, आगे जाके मनुष्यों में सिर्फ पुरुषों के बारे में हो जाती है, और आगे जाके पुरुषों में सिर्फ एक तरह के पुरुषों के बारे में हो जाती है। ये और छोटा छोटा पड़ता जाता है सब, ये सोच और समझ। ये डरने की बात है जो दिखने के लिए, जैसे कि एक 37 प्रैक्टिसेस ऑफ बोधिसत्वा थोंगिसम को लिखे हैं, उसमें कहते हैं कि आप धार्मिक व्यक्ति जैसे दिख सकते हैं, आप शिविर भी पहन सकते हैं, लेकिन आपका सोच और विचार धर्म से बहुत दूर हो सकता है। और जब वो होता है वो डरने की बात है। और हमेशा रिफ्लेक्ट करने का, मेरा सोच धम्मा के अनुसार है ये नहीं है, ये अवश्य बन जाता है। अगर ये साधना का हिस्सा नहीं है, बौद्ध धर्म का साधना करना तो असंभव है कि खुद का सोच और विचार रिफ्लेक्ट करने के लिए। और जो मेरे टीचर से जो भिक्षुनी लोग हैं तिब्बतन ट्रेडिशन में, उन लोगों की लड़ाई मैं पहले भी देख चुकी हूँ, अभी भी देखती हूँ मैं, कि वो भिक्षु लोगों के साथ कैसे लड़ना पड़ता है। एक पढ़ने के लिए समान अधिकार, एग्जाम देने के लिए समान अधिकार, भिक्षु जैसे उपदेशक टीचर बनने के लिए समान अधिकार, समान सम्मान पाने का अधिकार, जैसे रिमोट हिमालय ननरीज लद्दाख संस्कार में ननरी से विंटर सीजन में खासकर पानी मिले, खाना मिले, उसके लिए भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे भी पुरुष प्रधान सोच और विचार है। क्योंकि बौद्ध धर्म भी ऐसे समाज में आगे चला है जहाँ जो समाज पुरुष प्रधान समाज है, और वही पुरुष प्रधान समाज में बौद्ध धर्म जितना भी शून्यता के बारे में बात करे और उस शून्यता में जेंडर को भी सवाल करे, जब शरीर को सवाल करती है, बुद्धि को सवाल करती है, जेंडर को सवाल करती है, बोलते हैं कि सब शून्य है और सब एक दूसरे के पे आधारित पे निर्मित है। और एक ऐसा कोई चीज़ है जिसको आप पकड़ के बोल सकते हैं अपने आप खड़ा है, अपने आप उत्पन्न हुआ है,
जेंडर कहाँ से उत्पन्न हुआ? मतलब हम अपने अपने शरीरों में किस चीज को पकड़ के बोल सकते हैं ये मेरा जेंडर है? मैं अपना हाथ पकड़ूं या दिमाग पकड़ूं, आंख, नाक, किस चीज में जेंडर बसती है? शरीर में ऐसा कोई चीज नहीं जिसमें जेंडर नहीं बसती है। तो बचपन में जब मैं बोला कि मैं इन जेंडरों से अपने आप को नहीं देखती हूँ, मुझे साड़ी पहनना पसंद है, तो और कुछ साल होने के बाद, जैसे मेरे 18 साल के होने के बाद थोड़ा ताकत मिली, थोड़ा शक्ति मिली, साड़ी पहनने शुरू किया है। घर में ऑफ कोर्स बिल्कुल एक्सेप्टिंग नहीं है, मतलब हो ही नहीं सकता है। ये पूरा घर का, परिवार का इज्जत जाने की बात है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर बाहर जाओगी तो साड़ी पहन के एक ही मतलब, आप सेक्स वर्क करते हो और हर जगह पे दाम पूछा जाता है कितना। मैं ये नहीं बोल रही वो गलत है, मैं अगर कर रही तो दाम बोल भी देती हूँ मैं उसमें कोई ये शर्म होने की बात नहीं है ना, लेकिन वो भी काम है। लेकिन ये रोब्स पहनने के बाद, खासकर जब साड़ी पहना, मैं स्त्री नहीं, साड़ी पहन के स्त्री, जो साड़ी सिर्फ स्त्री पहनते हैं, वो साड़ी पहनने पे मैं स्त्री नहीं हूँ। लेकिन वो छोड़ के जब ये रोब्स पहना मैंने, बिक्कू बिकनी जैसे आपने बोला एक ही कपड़े पहनते हैं, लेकिन फिर भी मैं ना स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ, दोनों में नहीं माना जाता है। मेरा टीचर कहती थी, जब पहले मैंने अपना दीक्षा लेने की, ऑर्डिनेशन लेने की इच्छा रखी सामने, तो उन्होंने बोला हाँ अब तो आपके पेरेंट्स थोड़ा रिलीफ होंगे क्योंकि आप साड़ी नहीं पहनने वाले हैं और चूड़ पहनने वाले हैं, रोब्स पहनने वाले हैं। मुझे लगा हाँ शायद सही है, लेकिन मुझे बाद में पता चला जब मैं चूड़ पहनना शुरू किया, एक बार मेरे पिताजी ने पूछा हाँ ये बौद्ध धर्म में क्यों लिया, हिंदू धर्म में क्यों नहीं लिया यानी कि इंसान का हमेशा सोच उस चीज से बना रहती है, जैसे कि जो अधिकार स्थिति है उस अधिकार स्थिति को कैसे बनाए रखे और उसमें कैसे कोई परिवर्तन ना आए। मेरे पिताजी को ये परिवर्तन, वो उस अधिकार स्थिति में बदलाव लाती है, वो पसंद नहीं है। मेरे साड़ी पहनने भी वो अधिकार स्थिति में परिवर्तन आ जाती है। मेरे शरीर पे क्या कपड़ा है इससे कोई लेना देना नहीं है, उससे समान ना धरती हिलने वाली है ना आसमान फटने वाली है, लेकिन मैं कैसे कपड़े पहनने वाली हूँ, ये समाज में जिस तरह का अधिकार बनाया जाता है उस अधिकार पे सवाल है। क्वेयर लोगों का, ट्रांस लोगों का ये मुद्दा नहीं कि आप कौन सा कपड़ा पहनते हैं, कौन सा जेंडर से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, किस व्यक्ति से आप सेक्स करते हैं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि क्वेयर लोग, ट्रांस लोग, जो समलैंगिक लोग हैं, ट्रांसजेंडर लोग हैं, ये जो अधिकार के आधार पर बनी हुई सिस्टम व्यवस्था है उसमें हम फिट नहीं होते हैं, उसमें सिमटते नहीं है हम लोग। और सिस्टम जितने भी पावरफुल नहीं दिखाई देती है, व्यवस्था जितने भी ताकत पर क्यों नहीं दिखाई दी, जैसे कि बौद्ध धर्म का भी व्यवस्था है, ले लो थाईलैंड ले लो, तिब्बतन बौद्ध धर्म ले लो, बहुत बड़ा मॉनेस्ट्रीज है, बहुत बड़ा जगह है और भिक्खु लोग बहुत पावरफुल है, बहुत सारा रिसोर्सेस है उनके पास। लेकिन कोई एक भिक्खुनी लोग आगे पूछने लगे कि मुझे भी पढ़ने का, ध्यान करने का, साधना करने का समान अधिकार चाहिए, वो अधिकार हिल जाती है, वो अधिकार डर जाती है। तो जैसे क्वेयर लोग, ट्रांस लोग, हम अपने जैसा रहना चाहते हैं, व्यवस्था डर जाती है। जो सिसजेंडर हेटेरोसेक्सुअल व्यवस्था है जहाँ पे सिर्फ उन पुरुष स्त्रियों का मर्यादा होती है जो शादी करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, एक तरह का लेबर करते हैं, एक तरह का जीवन बिताते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों का मान सम्मान होता है। जो भी उस दायरे में फिट नहीं होते हैं उनका सम्मान होना तो दूर की बात है, उनको इंसान की तरह देखा नहीं जाता है, क्योंकि व्यवस्था हमेशा अपने अधिकार को पकड़ के रहती है, वो अधिकार को खोने के डर में रहती है। और जब ये अधिकार को सवाल करने वाले कोई भी दिखाई दी, किसी भी स्थिति में, वो सेक्स वर्क करने वाले हो, वो कुलांतर विवाह करने वाले हो, अलग मजहब में विवाह करने वाले हो, शादी ना करने वाले हो, बच्चा पैदा करने वाले हो, ना पैदा करने वाले हो, मतलब कोई भी समाज के दायरे के बाहर एक सा कुछ कर ले, वो व्यवस्था बहुत डर जाती है। तो इसलिए हम लोग, कई क्वेयर लोग बोलते हैं कि सिर्फ हम ट्रांसजेंडर लोग और समलैंगिक लोग क्वेयर लोग नहीं है, यहाँ पे बैठे सारे बुकिनी लोग भी क्वेयर लोग हैं, क्योंकि ये भी समुदाय के बाहर
और जो समुदाय अधिकार के आधारित पर चलती है उस समुदाय को सवाल करते हुए चलते हैं हम लोग। और भगवान बुद्ध जो है वो खुद क्वेयर है। 2600 साल पहले उन्होंने बोला मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, परिवार छोड़ के जाने वाली हूँ, मैं पूरा समाज पे सवाल उठाने वाली हूँ सिर्फ अपने रास्ता चुनने से। और हम सब लोग जो भी अपना अपना रास्ता चुनते हैं, समाज का दाव प्रभाव अधिकार का ख्याल नहीं करते हुए हम अपना अपना रास्ता चुनते हैं, हम सब क्वेयर लोग हैं। और उस क्वेयर लोग से समाज तो डरती ही है। वो समाज की प्रॉब्लम है, हम लोगों की प्रॉब्लम है नहीं है। और हम लोगों की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। हम लोग तो प्रॉब्लम तो सोल्यूशन है। जो प्रॉब्लम हम सब लोग बना के रखे हैं उस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन है। और जब ये लोग देखने लगेंगे, हम सब लोग अपने अपने अंदर का अवेयरनेस देखेंगे। जब हम अपने अपने अंदर का अवेयरनेस देखेंगे, सब आज़ादी की ओर जाएंगे ना। और कभी उस वक्त किसी की आज़ादी मेरी आज़ादी का चैलेंज नहीं होने वाली है। किसी और का आज़ादी मुझे डराने वाली नहीं है। दूसरों का आज़ादी मुझे और प्रेरणा देगी, दूसरों की आज़ादी मुझे और शक्ति और ताकत देगी। और दूसरों की आज़ादी मैं उसी नज़र से देखने वाली हूँ। और वो बौद्ध धर्म और क्वेयरनेस दोनों मुझे ऑफर करते हैं। तो इसलिए जितने भी क्वेयर समुदाय हो, मुझे ट्रांस जैसे दिखने में बहुत दिक्कत होता है। ना मेरे बड़ा बाल है, ना साड़ी है, ना तिलक है, हाँ ना जहर है। तो मैं ट्रांस नहीं दिखती हूँ बिल्कुल, क्योंकि ट्रांस भी एक तरह दिखना चाहिए। हाँ, और मैं ब्यूटीफुल और एक हिसाब से दिखनी चाहिए। मैं हूँ नहीं हूँ वैसे। और बौद्ध धर्म में मैं बोलती हूँ ना मर्द हूँ, मैं स्त्री हूँ। आप मंक नन इस्तेमाल करते, मैं तो बोलूँगी नया शब्द नंक। आप नया शब्द इस्तेमाल करो। हाँ हाँ, मैं मोनास्टिक बोलूँगी। हाँ, मतलब आपका पहचान कई बार लोग कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में बोलती तो हमारा पहचान हमको खुद करनी चाहिए। क्वेयरनेस भी यही बोलती है कि हमारा पहचान खुद को करनी चाहिए। बाहर की कोई हमारा पहचान कर ही नहीं सकते हैं। वो लोग कोशिश करते हैं और फेल होते जाते हैं, लेकिन हम लोग अपने पहचान खुद करते हैं। और यहाँ पे हर लोग, मुझे मालूम है, हम लोग अपने पहचान खुद करते हैं। इसलिए धर्म के ओर बढ़े हैं और जो काम जिंदगी में कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। जेंडरिंग कितना एक डब्बे में बिठाने की बात होती है कि आप इस विशेष तरह से दिखे तो आप स्त्री, विशेष तरह से दिखे तो आप पुरुष। और जब हम उससे कंफर्म नहीं करते, हम उसके बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपने बताया कि हम सब क्वेयर हैं, सब आउटकास्टेड हैं, तो हम सब एक बराबर एक जर्नी शेयर करते हैं। और ऐसी भी आइडेंटिटीज़ है नॉन बाइनरीज, जैसे मैं भी खुद को नॉन बाइनरी जेंडर फ्लूइड आइडेंटिफाई करती हूँ। और मुझे कभी करती हूँ, कभी करता हूँ, दोनों शब्दों में कोई प्रॉब्लम। कभी किसी ने बोल दिया आप लड़की हो, हाँ, किसी ने बोल दिया आप लड़का हो, हाँ। अब दोनों में हाँ बोलने में कितना मजा है। और जब लोग आपको फिट करना, दोनों नहीं हो सकता, एक बताओ। सो लाइक यू सेड कि एक तो एक स्ट्रगल रहा कि खुद को फेमिनाइन बताने में देयर वाज एन असर्शन एंड देन गिविंग अप ऑन इट। Also when we talk about beyond gender, about sexuality, we try to assert that our sexuality is different from the heterosexual, the so-called normal. और उसके बाद when you take ropes, you have to give up on everything. So definitely ये बहुत दिक्कत भरा होगा, कठिन एक जर्नी होगी। और बहुत बार सारी चीज़ें कैसे डिसाइड, सिस्टम कैसे बनता है, ये लिखा हुआ है, तो ये सिस्टम है, कुछ लिखा हुआ होता है। तो हम जब बुद्धिज़्म को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि कितना समतावादी ये धर्म है, कितना अच्छा है, सबको समाने वाला धर्म है, एक्सेप्ट करने वाला है, तो इसमें जो कुछ लिखावट है, क्या वो चैलेंज करने जैसी नहीं है? क्योंकि सवाल यहाँ से आता है कि ये धर्म ग्रंथ कौन लिखता है? किसी भी धर्म का ग्रंथ किस जेंडर के व्यक्ति ने लिखा है, ये क्या हम गेस कर सकते हैं? मुझे लगता है कर सकते हैं, क्योंकि पितृसत्ताक सोच कैसे काम करती है हमें पता है। तो मैं एक चीज़ बस यहाँ पढ़ना चाहूँगी। विनय पीटक में कुछ रूल्स है कि जब हम जीवन लेते हैं, जब हम भिक्खु या भिक्खुनी बनते हैं, तो उस वक्त कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, उसके लिए कुछ नियम बताए थे।
तो उसी में एक शब्द का इस्तेमाल है कि पातिमोक्य से रिलेटेड यहाँ पर मुझे कुछ रेफरेंस मिले हैं कि पंडक अगर बैठा हो तो पातिमोक्य नहीं कर सकते, या चीवर कौन ले सकता है। तो पंडक नाम का शब्द हमें पाली में मिलता है, जो मुझे अपने गुरुओं से पता चला कि पंडक को हिजरा या जो स्त्री या पुरुष नहीं है इस तरह से डिफाइन होता है। तो एक तो बुद्ध के समय ये टेक्स्ट नहीं लिखे गए थे, तो मैं अगेन आई एम कमिंग टू यू ताशी, आप मुझे बताइए कि टेक्स्ट को, एक सिस्टम को चैलेंज करना कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम लोगों को तो शांत कर सकते हैं लेकिन सिस्टम कहीं लिखा गया है तो वो एक्सेप्टेंस, और क्या आपने इस पर कभी बात की है और वो अनुभव कैसा रहा इस डिबेट को लेकर, प्लीज। वही जिस विनय पिटका के जो नियम है, जो शिविर ले सकते हैं नहीं ले सकते, उसमें ये भी लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति 3 बार से ज़्यादा अपना जेंडर चेंज करते हैं वो नहीं ले सकते हैं। मतलब 3 बार तक चेंज कर सकते हैं आप, उसके बाद नहीं चेंज कर सकते हैं। हाँ, सो यानी कि जब वास्तविक रूप में भगवान बुद्ध का जीवन और उनका जो बोधन के कॉन्टेक्स्ट में जो भी लिखा गया है, जो भी त्रिपिटक है, उसमें जो भी लिखा गया है वो देखा जाता है तो वो देखने का नज़र अलग होता है जब एक्चुअली आप कॉन्टेक्स्ट में, असली कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो जैसे कलम सूत्रा में बुद्धा बोलते हैं कि मेरा जो भी शब्द आप ग्रांटेड मत ले लो, मैंने बोला इसलिए आप मत मानो, मैंने बोला इसलिए आप स्वीकार मत करो, लेकिन अपना सोच और विचार, तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल करके वो सच है नहीं है परख के, जान के, खुद के अनुभव से उसके स्वीकार। और ये भगवान बुद्ध हम्बल होने के लिए नहीं बोल रहे, वो ह्यूमिलिटी दिखाने के लिए नहीं बोल रहे। हम लोग अभी जी रहे कि वोक और पॉलिटिकली करेक्ट कल्चर में, भगवान बुद्ध शायद उस टाइम पे वो कल्चर नहीं है, तो हम ये मान के चल सकते हैं वो हम्बल बन के नहीं बोल रहे, वो इसलिए बोल रहे ताकि उनको मालूम है आगे जाके इंसान की बुद्धि में जो इग्नोरेंस भरा पड़ी है उसके आधार पे वो उनके टीचिंग्स को भी तोड़ मरोड़ करके कुछ और बना के उसको किसी और तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो इसीलिए वो बोल रहे कि हमेशा मेरे उपस्थिति में, मेरे अनुपस्थिति में, भविष्य में कभी भी हो, मेरे टीचिंग्स को फर्क के, देख के, जान के, पहचान के, खुद के अनुभव से जान के, पहचान के, सवाल करके जानने की कोशिश करो। और वो अक्सर होती नहीं है, क्योंकि जब भी किसी भी मजहब में, बौद्ध धर्म अलग नहीं है, जब एक मजहब, एक रिलीजन एक जगह पे आके एक इंस्टीट्यूशन बन जाती है और इंस्टीट्यूशन में धीरे धीरे करके अधिकार प्रवेश करने लगती है, और जब अधिकार का प्रवेश हो जाता है, फेथ, इंक्वायरी, प्रश्न, सवाल, डिबेट, तर्क विमर्श, ये धीरे धीरे करके पीछे हट जाते हैं। और जैसे जैसे अधिकार बढ़ जाता है उस इंस्टीट्यूट से फेथ भी गायब हो जाता है और उस इंस्टीट्यूट में सिर्फ अधिकार मिल जाता है और कुछ नहीं। और दुनिया में बहुत सारे मजहबों का यही कहानी है, उसमें सिर्फ अधिकार है और वो मजहब और सिर्फ अधिकार को पकड़ के रखने का, बनाए रखने का कोशिश में जुड़े रहते हैं। और उस कोशिश में जुड़े रहते हुए अपना खुद का जो टीचिंग्स है, खुद का जो फिलॉसफी है, खुद का जो ग्रेट थिंकिंग है, उसको पीछे छोड़ जाते हैं और वो पहचानते भी नहीं है हम लोग। क्योंकि अधिकार एक ऐसे ल्यूरिंग चीज़ है कि उसको हम क्वेयर हो, नॉन क्वेयर हो, बुद्धिस्ट हो, नॉन बुद्धिस्ट हो, इसलिए बुद्धिज्म में कॉन्टेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस इतना इम्पॉर्टेंट जो है कि क्यों हमेशा आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आप कौन सी स्थिति पे है, आपका दिमाग में कौन सा विचार सोच है। क्योंकि बाहर कुछ भी हो सकता है, वो सही बात है और उसके साथ एंगेज भी करना है, सवाल भी उठाना है, लेकिन खुद के बुद्धि में क्या है, खुद के बुद्धि में अधिकार बैठ जाए तो बुद्धि से तो कभी कुछ सही हो नहीं सकता है। तो उस अधिकार के ऊपर रिफ्लेक्ट कैसे करें एवरी मोमेंट, और उस अधिकार से मुक्ति कैसे पाए। क्योंकि हम लोग, किन्हीं लोग जब ऑर्डिनेशन का सेम राइट्स मांगते हैं, पूछते हैं, और बौद्ध धर्म में साधना करने का समान अधिकार पूछते हैं, वो अधिकार यानी कि पावर नहीं मांग रहे, हक मांग रहे, राइट मांग रहे। अब हाँ, सो और ये जो बाकी भिक्खु लोग हैं वो देने से डर लगता है कि हाँ ये लोग भी हम जैसे अधिकार में आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा। लेकिन भाई ये लोग तो अधिकार मांग नहीं रहे,
ये लोग तो हक मांग रहे जो उनका है, और मैं तो अपने टीचर्स से, बाकी लोगों से एक और स्टेप आगे जाके आप मांगो कि ये ऑर्डिनेशन सेरेमनी जो है आप बिक्कू बिक्कुनी मेल फीमेल नहीं, जेंडरलेस करो। जेंडर का कोई मतलब ही नहीं है ऑर्डिनेशन का, जेंडर का मतलब होना ही नहीं चाहिए। जिसके पास भी दिमाग हो, बुद्धि हो, सोच हो, और जो भी ध्यान करना चाहते हैं, जो भी विमर्श करना चाहते हैं, जो भी साधना करना चाहते हैं, वो साधना कर सकते हैं। उनका जेंडर क्या है, सेक्स क्या है, बॉडी में कौन सा क्रोमोसोम है, शरीर में कौन सा अंग है, नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता है, पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर फर्क पड़ रहा है तो गौतम बुद्ध ने जो बोला, दुख का जो पिंजरा है उससे छोड़ के आज़ादी की ओर जाने का, हम लोग तो वो नहीं कर रहे। हम लोग तो और पिंजरे बना रहे, मेल फीमेल, ये वो, टिबेटन, तरावाड़ा, ये अलग अलग पिंजरे बना के उन्हीं पिंजरों में और अच्छा सजावट करेंगे, प्लाज्मा टीवी लाएंगे, जोमेटो स्विगी का डिलीवरी होगा, अच्छा सा बेड आ जाएगा। मतलब कितना भी आ जाओ भाई, कितना भी होने दो, मतलब पिंजरा पिंजरा ही रहेगा, प्रिजन प्रिजन ही रहेगा। मतलब कभी आज़ादी का एहसास नहीं देने वाली है वो आपको। तो ये बौद्ध धर्म का अगर सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, साधना नहीं करेंगे, उसको भी पिंजरा बना सकते हैं। और जैसे कि मेरे एक टीचर कहते हैं, जस्टिन कांडो रिम्पोचे, कई लोग ये बोलते हैं कि धर्म भी, बुद्ध का धर्म भी अटैचमेंट बन सकता है, वो भी एक इम्प्रिजनमेंट बन सकता है। और कई लोग ये नहीं बोलते क्योंकि धर्म डिवोशन से जोड़ लेते हैं, और एक बार डिवोशन से जोड़ लिए वो तो परे हो गए, विमर्श के परे हो गए। लेकिन ना बौद्ध धर्म विमर्श के परे है, ना क्वेयरनेस विमर्श के परे है, समाज में विमर्श के परे कुछ हो ही नहीं सकता है, होना भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। ये जेंडर किस में है वाला जो सवाल था, तो एक किस्सा आपको छोटा सा बताती हूँ कि जब बाल काटने जाते हैं नाई के पास, तो अभी कैसे है शहरों में यूनिसेक्स सैलून्स है। मतलब पहले पुरुषों का सैलून और स्त्रियों का ब्यूटी पार्लर होता था, अभी यूनिसेक्स सैलून शहरों में है जहाँ बाल काटने जाते हैं। मेरे पार्टनर के साथ जो कि एक पुरुष है, हम दोनों साथ में बाल काटने जाते हैं, तो लिखा होता है कि पुरुषों के लिए 150 रुपया, महिला के लिए 300 रुपया। तो मेरा सवाल होता है, भाई ये बिल्कुल एक जैसे है, दोनों के सेम है, एक जैसे काट दो, सेम पैसे ले लो। बोलते नहीं, मतलब यहाँ से आपको कैसे पता चल रहा है कौन स्त्री पुरुष है, मैं तो यहाँ के बालों की बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ें होती है कि जेंडर किसमें, तो जेंडर हमारे दिमाग में है और वो कैसे बायस और हमारे दिमाग पे कब्जा कर लेता है। तो जेंडर के अलग, और जेंडर जब सामने दिखता है ना, तो आदमी क्या बोल रहा है उसका वैल्यू कम हो जाता है, कौन बोल रहा है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो when we are talking about how we navigate space within the community, within families, अभी स्पेस उससे और उधर है जो हमारे मोबाइल के अंदर की दुनिया है। एवरीबडी इज़ ऑन इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, हमारी प्रोफाइल्स है। तो आई कम अगेन टू विहान एंड आस्क एक छोटा सा बात बस बोल के क्वेश्चन मैं करती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, बट देन लोगों को वो क्या इंपॉर्टेंट है नहीं, वो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखा होता है कि मुझे भी ऐसे कभी आए हैं कमेंट कि पहले तुम अपना डिसाइड कर लो तुम कौन हो, स्त्री हो कि पुरुष हो। तो ये स्पेसेस नेविगेट करना कितना डिफिकल्ट होता है, और उसको हम बुद्धिज्म और बाबा साहब का कंपैशन लेकर कैसे नेविगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ट्रिगर होती है एंड इट इज़ वेरी नेचुरल टू गेट ट्रिगर्ड। सो आई वुड लाइक टू नो सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव फेस्ड, और उसको किस तरह से नेविगेट किया, हो सकता है कभी फेल हुआ होगा या कभी उसी में से ग्रो हुए होंगे। सो आई वुड लाइक टू नो दोज एक्सपीरियंसेस। Yeah. So basically, I had been part of Ambedkarite movement space before I start talking about my gender. So, means you also know we were in same university. So, like I used to be, means मैं हमेशा छोटी बाल रखने वाला, पैंट शर्ट पहनने वाला ही था। ऐसा कुछ नहीं कि मैं सिर्फ मेरा नाम विहान नहीं बोलता था, जो मेरे माँ बाप ने दिया हुआ लड़की का नाम होता है उस नाम से रहता था और बताता था।
मुझे मेरे शरीर से, हम जिसको जेंडर डिस्फोरिया बोलते हैं, यानी मेरे शरीर से और मेरे जेंडर से जुड़ा मुझे महसूस नहीं होता था, तो मैं हमेशा एक शर्ट के ऊपर जैकेट पहन के रहता था। और मुझे कोई भी पूछता था कि आप जैकेट क्यों पहनते हो, तो मेरा सबसे पहला रिस्पॉन्स होता था कि अम्बेडकर ने बोला है सूट बूट पहन के रहो। और वो कम्युनिटी में बहुत अच्छे से चला जाता था कि हाँ अम्बेडकर ने बोला है कि सूट बूट पहन के रहो, तो ये पहन के रहते हैं और इनको पसंद है। तो मेरे अम्बेडकराइट दोस्त ज़्यादा ही थे हमेशा, और वो हमेशा ज़्यादा ही रहेंगे ज़िंदगी में, क्योंकि मैं समुदाय से आता हूँ, उसमें ज़्यादा समय गुजारा है, या मूवमेंट स्पेस का ज़्यादा समय हिस्सा रहा हूँ। तो जब जेंडर मैंने जब मेरा नाम अलग बताया पहली बार, और उसके साथ साथ मेरे जो प्रोनाउंस पहले लड़की के इस्तेमाल करता था, तो जब मैं करती हूँ से करता हूँ करना शुरू किया और बातचीत करना शुरू किया, तो मेरे ऊपर ज़्यादा सवाल आने लगे। छोटे बाल पहनना, जैकेट पहनना, उसके ऊपर तो सवाल थोड़े बहुत थे कि क्यों, अरे बड़े बाल बड़ा होगी तो अच्छे लगेगी, लड़कियों के कपड़े पहनेगी तो अच्छे लगेगी, वो सवाल थे। बट अम्बेडकर ने बोला है, वो सेंटेंस में बहुत सारे जगह नेविगेट कर पाया। बट जैसे ही मैंने बताना शुरू किया, तो उससे मुझे बहुत दिक्कतें महसूस करनी पड़ी। ऑनलाइन स्पेस में वो ज़्यादा करनी पड़ी, क्योंकि सामने आप जब अम्बेडकराइट हो, विचारधारा को समझते हो, अम्बेडकर के बताए हुए पाथ पे चलते हो, तो सामने जो आर्ग्यूमेंट है वो थोड़े कम रहते हैं। बट ऑनलाइन स्पेसेस में आप तो बाहर हो ना, तो मैंने तो बहुत ऐसे कमेंट्स मेरे ऑनलाइन चीज़ों पे देखे जिसके कारण मुझे ऑनलाइन स्पेसेस प्राइवेट करने पड़े, लोगों को कमेंट सेक्शन ऑफ, ताकि लोग कुछ कमेंट ना करें, क्योंकि आप रेनबो फ्लैग और जय भीम फ्लैग एक साथ डालो तो अपने ही कम्युनिटी से जो लोग हैं वो उस पर आके कमेंट करना शुरू किए। और एक बार इतने ज़्यादा कमेंट किए थे कि मुझे लगने लगा था कि मैं इतना क्या गलत किया कि जय भीम फ्लैग को मैं प्राइड में लेके गया। और मैं जब प्राइड में गया था तो उधर मुझे लड़ना पड़ रहा था कि क्यों जय भीम फ्लैग प्राइड में ज़रूरी है, क्यों अम्बेडकर ने बोला है एक्सप्रेशन के बारे में, फ्रीडम के बारे में, क्यों मुझे अम्बेडकराइट विचारधारा को प्राइड मार्च में रखना भी जरूरी है, करके मुझे उधर लड़ना पड़ा। मैं दिल्ली में गया था, तो दिल्ली में बाकी लोगों के साथ मैं झगड़ा कर रहा हूँ प्राइड मार्च में कि मैं जय भीम फ्लैग लूँगा, क्योंकि वो भी उतना ही मेरे आइडेंटिटी का हिस्सा है जितना मेरा रेनबो फ्लैग है। उसके साथ साथ ऑनलाइन वो फोटो डालने के कारण मुझे अम्बेडकर लोगों के साथ झगड़ना पड़ रहा था कि नहीं, मेरी आइडेंटिटी है, मैं जय भीम बोलूँगा, मैं जय भीम फ्लैग लगाऊंगा। पर मुझे बहुत बार वो सुनना पड़ा। मैं एक्सपीरियंसेस क्या शब्द इस्तेमाल किए थे वो बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता, बट कुछ लोगों ने बहुत सेक्सिस्ट शब्द उनको बोलेंगे वैसे भी इस्तेमाल किए थे मीन्स। और कुछ लोग क्योंकि जिनको मेरा पुराना नाम पता है तो वो मेरे पुराना नाम लेके बोल रहे थे कि हाँ बड़ा आया अभी विहान करके घूम रहा है, बट तू तो यही है ना, सॉर्ट ऑफ। तो वो चीज़ें बहुत ट्रिगर करती है और उसके कारण आप भी सवाल उठाना मैं तो बहुत सारे अम्बेडकराइट स्पेस से गायब हो गया था। मीन्स मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं वही जाके बोलूँ कि मैं विहान हूँ या मैं एग्जिस्ट करता हूँ जगह पे, क्योंकि मुझे बहुत सारे जगहों से निगलेक्टेड फील होना शुरू किया था, क्योंकि वो लोग मुझे पिछले 7, 8, 9 साल से कोई अलग जेंडर से और अलग नाम से पहचानते, तो वो अभी मुझे अलग तरीके से देखना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। काफ़ी सेंसिटिव बात है, क्योंकि कोई अगर अपना अस्तित्व बता रहा है तो आपको अधिकार नहीं है कि उनके अस्तित्व को खारिज करें। और जैसे हम बात कर रहे थे कि क्वियरनेस की, लेकिन अम्बेडकराइट लोग अगर ये एक्सेप्टेंस नहीं दिखाए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। बिकॉज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा अम्बेडकराइट समाज है वो बुद्धिज़्म के गुणों को समझता है, एथिक्स को समझता है और समा कर लेने वाला ये धम्म है।
तो फिर ऐसे एक्सपीरियंसेस क्यों? एक ऐसी और बात हुई थी कि जैसे कोई दोस्त है, उनके इंस्टाग्राम के बायो में लिखा है जय भीम, और फिर वो कुछ वीडियो बना रहे हैं, आज के ज़माने की बात है, फोटो डालते हैं, रील्स बनाते हैं, और वहाँ पे उन्होंने जेंडर सेक्सुअलिटी की बात की तो कह दिया कि अपने प्रोफाइल से जय भीम हटा दो। हुआ है ना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आई कम टू प्रशांत एंड आस्क, जब वो होता है ना कि अपने घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, फिर लगता है कि यार समाज तो मेरा है, फिर समाज भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो कौन है? तो where do you, I'll come back to the first question I asked actually, where do you find your Maitri within Ambedkarite circle or with outside the Ambedkarite circle, within the queer circles? And how do you handle your mental health if things are getting triggered? हाँ, मेरे लिए तो सर्कल बन गए हैं, मतलब एक अम्बेडकर वाला सर्कल, एक जिसमें मैं जेंडर सेक्सुअलिटी की बात करता हूँ, एक जिसमें मैं डिसेबिलिटी वगैरह की बात करता हूँ। तो ऐसे सर्कल हाँ थोड़ा सेपरेट बन गया है थोड़ा सा। और मैं पुश करता हूँ कि ये सर्कल कोलैप्स हो जाए, थोड़ा एक दूसरे में मर्ज हो जाए। लेकिन हाँ चीज़ें हैं जैसे, बट पुश करना पड़ता है। जैसे मैंने बोला कि मेरे काफ़ी बहुत अच्छे दोस्त हैं। सॉरी मेरा थोड़ा गला बैठ गया है। थैंक यू। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और जिनके साथ मैंने ग्रेजुएशन किया, जिनके साथ मैंने LLB वगैरह किया, और जिनको शायद मेरे से ज़्यादा बाबा साहब के बारे में पता है, जो मेरे से ज़्यादा उन्होंने बाबा साहब का लिटरेचर पढ़ा है। उनके साथ एक अलग कनेक्शन है मेरा। उनके साथ में जो वो चीज़ें बात कर सकते हो जो शायद मैं किसी और के शायद ना करूं, क्योंकि उनको शायद मैं सोचता हूँ कि उनको मैं कहाँ से आ रहा हूँ वो सोच नहीं पाएंगे। तो उस हद तक मेरी वैसे दोस्त हैं जिनमें बाबा साहब और फिलॉसफी और बुद्धिज़्म की मैं बहुत देर तक बात करता हूँ। फिर ऐसे भी हैं जब मैं जगह चेंज किया, जब मैं दिल्ली गया थोड़ी देर, फिर इधर बैंगलोर आया, यहाँ पे कुछ दोस्त मिले जिनके साथ मैं जेंडर सेक्सुअलिटी की बात करना सहज महसूस करता हूँ। फिर अभी मैं कैंपस जा रहा हूँ लॉ स्कूल, वहाँ पे कुछ दोस्त बने हैं। लेकिन ये है कि एक हेजिटेशन है, और मुझे नहीं लगता कि वो इतना जल्दी हर सर्कल में हर बात करने लायक अभी समाज वैसे हुआ है। बट कोशिश होती है कि हर एक सर्कल की बात करें। तो मैं जानबूझ के जब मैं मेरे यवतमाल के दोस्तों से बात करता हूँ तो मैं उनको जेंडर सेक्सुअलिटी की बातें बताता हूँ। मैं क्यूयर प्राइड में कैसे गया, वहाँ पर मैंने क्या देखा। फिर मैं इधर आता हूँ तो मैं बताता रहा मैं तो हमारे महाराष्ट्र में अम्बेडकर क्या मूवमेंट है, तो मैं इधर ये घुसाता हूँ। आई ट्राई टू पुश थिंग्स डिस्कोर्स थोड़ा सा, ताकि हर एक सेक्शन का सेंसिटिविटीज़ पता हो। शायद सब कुछ चीज़ें एक दूसरे के बारे में शायद ना भी पता हो। फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता होगा कि एक भिखुनी की क्या समस्या है, या फिर कोई मेरे कॉलेज में एक लड़की कैसे वो क्लास कर रही है, कैसे वो आना जाना कर रही है, उसको बस में बैठते हुए उतरते हुए क्या तकलीफें, मुझे नहीं पता। बट जब हालांकि हमको नहीं पता एक दूसरे की हर कोई मुश्किलात है, लेकिन हमको थोड़ा बहुत एक दूसरे की मुश्किलात के लिए सहज होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, थोड़ा सेंसिटिविटी ला के उतना अगर कोशिश किया जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। अगर कोई जैसे चाहे वैसे, अगर मुझे कोई बिना रोक टोक, अगर मैं जैसे चाहूँ वैसे अगर घर से बाहर निकल के कैंपस जाके अगर वापस आ रहा हूँ तो इससे अच्छा और क्या है। दिस इज़ बेस्ट फॉर मी। आप मेरे को तकलीफ ना दीजिए, आप मेरे को मेरे आइडेंटिटी सेक्सुअलिटी मैं कैसे चलता हूँ इससे ना जज करें, मेरे से बात करके जज करिए कि मेरे ख्यालात क्या है। फिर शायद हम बैठ के कहीं चाय पिए, दोस्ती बने रहे। तो बस वैसे है। और आपने पहले बात किया सोशल मीडिया का भी उसी हिसाब से मैं ग्रेजुएशन के एकदम बाद बाबा साहब के राइटिंग्स पढ़ना शुरू किए, एकदम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इन इंडिया। तो एकदम बाबा साहब का कट्टर बन गया मैं। लाइक ये फिलोसफी है जो जिससे मेरे को काम करना है, जिसको मेरे को फैलाना है। तो ऑफकोर्स मैंने सोशल मीडिया लिया, सोशल मीडिया पर मैं टाइप करता था, और ऑफकोर्स
ये चंद्रयान उड़ा रहे, फिर उसको नारियल फोड़ के चंद्रयान उड़ा रहे, उस पर स्वास्तिक बना के चंद्रयान उड़ा रहे। तो मैं उसको गाली देता था कि क्या फालतू चीज़ें हैं, एक देश का इतना बड़ा संवैधानिक साइंटिफिक सेंटर है, तुम चंद्रयान उड़ाने के लिए तुम नारियल भी फोड़ रहे हो। नारियल फोड़ने से क्या तुम्हारा चंद्रयान फूट जाएगा या फिर ठीक से चला जाएगा वो। तो ये सब चीज़ें जब बात करता था तब ऑफकोर्स मेरे को गाली गलौज मिलता था सोशल मीडिया पे, जो ब्राह्मणिकल फोर्सेस है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे फिर जब बाकी चीज़ें भी बोलना शुरू किया तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुझे भी प्राइवेट करना पड़ा, कुछ सेंसर करता हुआ भी कि शायद ये बात ना बोलूँ, शायद वो बात ना बोलूँ। तो स्पेस थोड़ा सा टॉक्सिक तो है सोशल मीडिया, बट मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इज ऑल्सो वेरी गुड, एक बहुत अच्छा साधन है जिससे इंसान विचार प्रकट कर सकता है, एक दूसरे से जुड़ सकता है। तो हाँ, थोड़ा मध्यम मार्ग पकड़ के चलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सुशांत। बहुत ही अच्छी एक बात आपने बोली कि सवाल करना है। तो बात यही होती है कि हर कोई सब चीज़ें नहीं जानता है, और बाकी किसी धर्म में सवाल पूछने का कितना अधिकार है या नहीं है मैं नहीं जानती, लेकिन बुद्धिज़्म में डेफिनेटली देयर इज़ अ वे यू कैन आस्क क्वेश्चंस। अब सवाल उठाना किसी के अस्तित्व पर अलग बात है, लेकिन सवाल करना, जानने के इंटेंशन से सवाल करना, ये इतनी बढ़िया चीज़ है बिकॉज इट गिव्स यू स्पेस टू हैव अ डिस्कोर्स, टू हैव अ डिस्कशन एंड नो ईच अदर्स कल्चर्स, आइडेंटिटीज एंड एक्सेप्टिंग इट। क्योंकि आप जब तक जानेंगे नहीं, आप दूर से कुछ तो सोच के मन में कुछ रख के करेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। So this is, I would like to conclude this panel with this message that we have the space to ask questions, to learn about each other, and these questions should be empathetic with the intention to learn more, and that's what that's what is the beauty of Buddhism, that it allows us to. So thank you everyone on the panel. Thank you so much. You gave your time and shared your lived experiences, which is not an easy thing for queer people. So thank you so much. I want to say something. Actually, मेरा प्रश्न रहता है हमेशा कि बुद्ध का क्या जेंडर है, कौन से जेंडर है बुद्ध के। जब हम छोटे बच्चों से मिलते हैं तो छोटे बच्चे कहते हैं हम तो बाबा साहब के साथ में उनकी फोटो देखे तो हमने उनको पति पत्नी समझा था। जब बड़े हो गए तब पता चला कि वो बुद्ध है, वो पुरुष है, यानी वो पत्नी नहीं है, यानी स्त्री नहीं है, वो पुरुष है। फिर उसके बाद में देखो समाज कैसे काम करता है। समाज ये काम करता है कि जितनी मूर्तियों में बुद्ध फेमिनाइन लगते हैं, मूर्तियों में जितने फेमिनाइन लगते हैं, स्त्रीत्व गुण लेकर रखते हैं, और स्त्रीत्व गुण यानी ममता के गुण, क्योंकि वो जन्म देते हैं, ममता के गुणों को जन्म देते हैं, और वो ममता के गुण जो है वो एक व्यक्ति में होता है, वो बुद्ध, वो प्रतीक है। और जब ये बात सामने आने लगी कि लड़के लोग, बच्चे लोग उसको पत्नी कहने लगे, तो कलाकारों ने उनका चीवर बदल दिया पहनने का और छाती दिखाने लग गए कि नहीं भाई ये तो पुरुष है। आज की मूर्तियां हमें ऐसी दिखाई देती है जिसमें उनका शरीर ढका हुआ नहीं दिखता, उनकी आधी छाती खुली दिखाई देती है। वो दिखाना चाहते हैं ये पुरुष है, यानी बच्चे लोग देखकर ये समझे, देखो छाती दिख रही क्या, जो स्त्री में होते। मैं बहुत ओपन हूँ इस मामले में। जब हम इनको ट्रांसलेटेड बताते हैं हमारे भिक्खुनियों को, मैं ज्ञान की शरण जाता हूँ, मैं बोलने लगाती हूँ हिंदी में, बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं ज्ञान की शरण जाता हूँ। कुछ कुछ महिलाएं या कुछ कुछ भिक्खुनियाँ
जोर से बोलेंगे मैं ज्ञान की शरण जाती हूँ। यानी वो जो फीलिंग है खास करके महिलाओं में, भिक्खुनियों में, खास करके भिक्खुनियों में, कि वो फील करते हैं कि वो महिला है। और इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है भिक्खुनी, अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वुमेन टू सेंटिएंट बीइंग। ये एक है जो जीवन में है। बुद्ध ने भिक्खु संघ भिक्खुनी संघ इसलिए बोला है क्योंकि वो पहले अपना जो आ रहे वो पुरुष बनकर आ रहे हैं, स्त्री बनकर आ रहे हैं, और जीवन में आने के बाद में वो जैसे समुद्र में कहते हैं सारी जातियां मिट जाती है, वैसे तुम्हारा लिंग भी मिट जाना चाहिए, तुम्हारा जेंडर खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा। ठीक है, तो ये आम जनता जो है ये बुद्धिज्म को समझकर, बुद्ध की शिक्षाओं को समझकर वो ह्यूमन बने, मानव बने, लेकिन जीवन लेते तो तुम्हारा प्रोसेस सेंटिएंट बीइंग की तरह होना चाहिए, उस तरफ जाना चाहिए। घंटे जी इधर देखो, मैं उनसे बात कर रही हूँ तो ओके। और दूसरी बात ये है कि आपने पिंजरा कहा, मैं खत्म कर रही हूँ 2 मिनट में। ठीक है, ओके। दूसरा ये कि हम पिंजरे की बात किया ना, हम लोग पिंजरे में बंद रहना चाहते हैं, हम इसमें फिक्स रहना चाहते हैं, जबकि बुद्धिज्म या बुद्ध की टीचिंग से बंद रहने वाली नहीं है। समुद्र की तरह कहा जाता है, जो समुद्र कहीं पर भी जब ये आ जाता है, क्या कहते हैं उसको, सैलाब, हाँ, तो वो पूरा पानी सबको बाहर फेंक देता है, उस तरह होना है। गंदगी को, हाँ, सब कुछ फेंक देता है, उस तरह हो है बुद्धिज्म है, सब गंदगी को बाहर फेंक रहा है। लेकिन बाबा साहब ने क्यों बुद्ध को चुना, क्यों हमारी पहचान करवाई, और वो फिर भी एक तरह से थोड़े से पिंजरे में रहना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले मानव के पिंजरे में आ जाओ, उसके बाद में सेंटिएंट के बाद पिंजरे में आना है। तो बाबा साहब ने राष्ट्रीय लेवल पे सोचा कि पहले भारत के तो बनो। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि हम लोग यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी, चाहे वो भिक्खु हो, भिक्खुनी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, चाहे कोई जेंडर के हो, सबसे पहले अगर भारत में रह रहे तो फील प्राउड टू बी फर्स्ट इंडियन एंड द लास्ट इंडियन। और इसीलिए मैं ये, आप तो जीवनधारी आपको नहीं देंगे, बंद गए आप एक पिंजरे में, तो मैं आपको, बाकी दोनों को पता नहीं साइज का क्या है, आप एक्सचेंज कर सकते हो तो मैं ये मित्र स्वयंदीप द्वारा, जिनका बाहर में एग्जीबिशन है, उनका द्वारा तैयार किया गया आर्ट है, और ये आर्ट मैं आपको देना चाहूँगी। I want all people to be India's first, Indian last, and nothing else but Indian. So nothing else. We are Indians. साइज बाद में मित्र स्वयंदीप से बात करेंगे प्लीज आप and I'm proud of you that you have that courage. अभी लास्ट ये सेशन खत्म करने के पूर्व हम इन्हें मोमेंटोस देना चाहेंगे, और उसके लिए मैं वेनरेबल बोधिहीन भिक्खु उन्हें बुलाना चाहती हूँ स्टेज पर, और भिक्खुनी विजया मैत्रियों को बुलाना चाहती हूँ, एक भिक्खु एक भिक्खुनी, और इनके द्वारा हम आपको मोमेंटो देना चाहते हैं। एक भिक्खु, एक भिक्खु, दो भिक्खु, जो अभी सज्जन भी बनने के मार्ग पर है। This is the most diverse stage. बहुत अच्छा लगा बंते जी को भी, और इसलिए हम भिक्खु भिक्खुनी को एक वर्ड देते हैं, भंते जी। भंते जी मीन्स वेनरेबल,
बनते जी मीन्स आदरणीय, इनके लिए कोई जेंडर नहीं है। बनते थी थोड़ा चेहरा ऐसे थोड़ी देर के लिए हाँ, जब चेहरा देखते हैं देखते समय फोटो कैमरा के हाँ lastly, I would like to invite on stage the anchors Sumit,